Students, today we are going to start a new chapter, that is lesson number 20, our rich heritage. So we are going to know about what is the heritage, meaning of heritage, and what are the languages that are spoken in our country, and what are the dresses worn by different people living in our country, what are the types of music and dance forms that are practiced in our country, and what about the art and architecture of our country. So in this social studies, in this subject, we have learned about our country first, then what about the climate of our country, agriculture of our country, and what about the government that we follow in our country. So we are going to just discuss about all the physical features, agriculture, climate, government, national symbols, all these we have discussed. And today in this chapter we are just going to learn more about our rich heritage, what is our culture, what are our traditions. So let us start the chapter. Observe the picture carefully and answer the questions. So here there is a beautiful picture is given here, you can see, which is this picture is well known for its beauty, and what it is, Taj Mahal, and where it is located, it is located in the city of Agra. Now let us just start our chapter and see what is given over here. Firstly, let us know what is heritage. Heritage क्या होता है? Heritage refers to the history, traditions and qualities that a country has had for many years. So children, read this sentence again. What do you mean by हेरिटेज? हेरिटेज क्या होता है? अपनी जो कंट्री की हिस्ट्री, अपनी कंट्री की पूरा हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द ट्रेडिशंस, क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़, अपनी कंट्री की जो स्पेशल, हर एक कंट्री का कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होते हैं. इन द सेम वे अपना कल्चर क्या है, अपना ट्रेडिशंस क्या है, अपना हिस्ट्री क्या है, ये सब कब से, बहुत मतलब पास्ट से, मतलब हैज़ हैड फॉर मेनी ईयर्स, फ्रॉम सो मेनी लॉन्ग एगो, मतलब बहुत दिनों पहले से हमारी कंट्री में क्या कल्चर, क्या ट्रेडिशंस, क्या फॉलो करते हैं, ये हेरिटेज है. सो वी शुड नो अबाउट द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. अपनी कंट्री की हेरिटेज अपन को पता चलना बहुत ज़रूरी है. द हेरिटेज ऑफ इंडिया इंक्लूड्स वेरियस लैंग्वेजेस. सो अपनी इंडिया में कितने तरह की लैंग्वेजेस है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक दैट द पीपल follow here, and what are the different types of dance forms that are performed by the people living in different areas, and what about the buildings, what about the art and architecture, means कैसा houses की या कोई monuments की, how what about the designing and construction and paintings, art and craft में भी अपनी country का किस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट होता था, ये सब, ऑल दिस इंक्लूड द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. इन सबको इन डिटेल में हम जो इतना सालों से, इतना मैनी ईयर्स एगो से अपनी इंडियन की जो हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड क्वालिटीज़ है, इनके बारे में इन डिटेल जो लर्न करना, वही अपना हेरिटेज है. ओके चिल्ड्रन, सो ये हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड हुआ? पहले अपनी लैंग्वेजेस, देन ड्रेसेस, देन म्यूज़िक, देन डांसेस, बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स एट्सेट्रा. So firstly, languages. People in India speak many languages and dialects. अपनी कंट्री में तरह तरह की लैंग्वेजेस बोला जाते हैं और तरह तरह के डायलेक्ट्स. सी द वर्ड DIALECTS. डायलेक्ट्स क्या होते हैं? लोकल लैंग्वेज स्पोकन बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल. मतलब कुछ एक एरियाज़ में, कुछ रिमोट एरियाज़ में या ट्राइबल्स वगैरह जो है ना, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है. मतलब वो ओनली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वो लैंग्वेज स्पीक करते हैं. ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को हम डायलेक्ट्स बोलते हैं. सो अपनी कंट्री में अलॉन्ग विथ मेनी लैंग्वेजेस देर आर सो मेनी डायलेक्ट्स ऑल्सो. However, there are 22 languages recognized by the Indian Constitution. Our Constitution of India has recognized only 22 languages. मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारा डायलेक्ट्स है, बट ऑफिशियली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकग्नाइज हुआ ओनली 22 लैंग्वेजेस है. लेट अस सी व्हाट दे आर. दीज आर, मतलब इन्हीं को क्यों रिकग्नाइज किया? बिकॉज द पीपल स्पीकिंग दीज लैंग्वेजेस आर मोर इन नंबर, है ना. ये लैंग्वेजेस ज़्यादातर लोगों से बोला जाता है, तभी इनको रिकग्नाइज की है. दीज आर आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली,
मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, Tamil, Telugu, and Urdu. So these are the languages that are recognized by the constitution of our country. Hindi and English are the two official languages of our country. So दो official languages को भी select किए थे, उनमें हिंदी और इंग्लिश ये दोनों अपनी country की official languages है. Now the second topic is dresses. What about the dresses worn by the people of different areas? India is a vast country divided into various regions. We know this. Ours is a very big country and it is divided into various regions. People of different regions wear different dresses depending upon the climatic conditions हो या traditions हो. The people living in different areas wear different types of dresses. Some of the popular traditional dresses of women are most of the Indian women किस तरह की कपड़े पहनते हैं, मतलब what type of dressing they used to have mainly सलवार कमीज़ एंड घाघरा चोली. दीज टू आर मतलब ज़्यादातर लोग साड़ी, सलवार कमीज़ या घाघरा चोली ये उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होता है. इसके अलावा बहुत तरह के बहुत सारे ड्रेसेस पहनते हैं. बट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर मतलब ज़्यादातर लोग से पहना जाएगा ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, साड़ी, सलवार कमीज़ एंड घाघरा चोली फॉर वीमेन. Traditional dresses of men include for males, for females it is sari, salwar kameez and घाघरा चोली traditional में, and for males it is धोती कुर्ता and कुर्ता पैजामा. हो तो धोती कुर्ता पहनते हैं और else कुर्ता पैजामा. These are the traditional dresses of men and women in our country. Now the next topic is music and dance form. There are two main styles of classical music in India. You have learned about this in your class 3 also. अपनी country में classical music के two important forms है. One is Hindustani music and the other is Carnatic music. हिंदुस्तानी म्यूज़िक डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में मोस्टली हिंदुस्तानी म्यूज़िक ज़्यादातर होता है. वाइल कर्नाटिक म्यूज़िक डेवलप्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. कर्नाटिक म्यूज़िक ज़्यादातर साउथ स्टेट्स की पीपल फॉलो करते हैं. सम ऑफ द फेमस सिंगर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आर. अपनी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत मतलब इसमें बहुत सारे फेमस सिंगर्स हैं जिसने अपनी योगदान दिए हैं इस पर्टिकुलर म्यूज़िक में. सो लेट अस सी हु दे आर. तानसेन, बैजू बावरा, श्यामा शास्त्री and Dikshitar. These are the famous Indian classical music singers of our country. India is also known for its distinct folk music. ये म्यूज़िक के अलावा क्लासिकल म्यूज़िक के अलावा अपनी कंट्री में फोक म्यूज़िक भी बहुत फॉलो करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक म्यूज़िक आर देयर इन आवर कंट्री. भावगीते of Karnataka and Bihu Geet of Assam are two examples of folk music enjoyed in India. So इंडिया में एंजॉय किया जाने वाली ये फोक म्यूज़िक, ऐसा हर स्टेट का भी अपना एक अलग फोक म्यूज़िक भी होते हैं. बट रेदर देन दिस द मोस्ट फेमस भावगीते ऑफ कर्नाटका, मतलब कन्नेडियंस जो है वो भावगीते, दिस इज़ द फेमस फोक एल्बम ऑफ Canadians. and वो और बिहू गीत ऑफ आसाम, बिहू विच इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसामीज़, उस टाइम पे वो लोग जो सॉन्ग्स गाते हैं फोक म्यूज़िक में दैट इज़ नथिंग बट बिहू गीत. ये आसामीज़ की बिहू गीत है. दीज आर द मेन टू एग्जाम्पल्स to say that how the people of this country enjoy the folk music too. Other than classical music, people of our country give importance and enjoy the folk music also. फोक म्यूज़िक मतलब जहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में उधर की पीपल फॉलो करने वाली है. ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक ऑफ आवर कंट्री. नेक्स्ट, डांस फॉर्म्स. देर आर 8 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस. इंडिया में जो क्लासिकल डांस है उसकी मेनली 8 फॉर्म्स है. व्हाट दे आर? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, Manipuri and Mohiniyattam. So these are the main important 8 forms of Indian classical dances. What they are, children, read along with me. Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi, Odissi, Kathakali, Satriya, Manipuri and Mohiniyattam. Pandit Birju Maharaj
Mallika Sarabhai and Sonal Mansingh are some of the famous classical dancers. So these are the famous classical dancers who are well known in their field of classical dance. Pandit Birju Maharaj, Mallika Sarabhai and Sonal Mansingh. These are the people who have done, who have given their best in this classical dance. Apart from these, इसके अलावा most of the states in our country have their own folk dance forms also. जैसा मैंने बोला ना, अपनी एरिया की पर्टिकुलर डांस फॉर्म को या पर्टिकुलर म्यूज़िक को फोक म्यूज़िक या फोक डांस फॉर्म बोलते हैं. सो ये सब क्लासिकल डांस फॉर्म है, मतलब ऑल थ्रू द कंट्री प्रैक्टिस करते थे. बट स्पेशली डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे लिव, उस बेसिस पे सबका अपना अपना फोक डांस है जिसका भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस है. सच एज बांग्रा विच इज़ वेरी फेमस इन पंजाब, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थानी एंड लावनी महाराष्ट्र में. So these are the famous folk dances, the dance forms which exist in our country. Every state has their own famous folk dance, but mostly हम भांगड़ा, गरबा, घूमर, लावनी ये सब examples of folk dance forms हैं. Now this is all about music and dance of our country. And now art and architecture. What do you mean by architecture? Architecture क्या है? Construction and planning of any buildings or monuments. इसको हम बोलते हैं designing and construction of buildings. ये कैसा होता है? हर country का अपना अपना एक architecture होता है. तो इंडिया की आर्किटेक्चर वेरी ग्रेट है, मीन्स वेरी पॉपुलर एंड इवन वेरी मैग्निफिशेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है अपनी कंट्री की. लेट अस सी व्हाट दैट इज़. India is widely known for its magnificent paintings, crafts, forts, palaces, temples, mosques, etc. इंडिया में बहुत अच्छे, वाइडली नोन फॉर इट्स मैग्निफिशेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. तरह तरह की पेंटिंग्स है अपनी. इधर क्राफ्ट वर्क है, फोर्ट्स है जहाँ पे हर एक जगह में जो भी रूलर्स रूल करते थे वो अपनी स्टाइल में फोर्ट्स की कंस्ट्रक्शंस करते थे. द पैलेसेस इज़ द प्लेस वेयर द किंग्स यूज टू लिव. मतलब जो भी वो राजा महाराजा की डायनास्टी जो है वो लोग उधर वो पैलेस में रहते थे. उसकी स्पेशली इन राजस्थान वी कैन हैव सो मेनी फोर्ट्स एंड पैलेसेस. टेम्पल्स, तरह तरह की टेम्पल्स जिसने कंस्ट्रक्ट किया, जो भी रूलर्स, मॉस्क्स एक्सेट्रा, ये इन सब के लिए इंडिया वेरी फेमस है. फॉर व्हाट? पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स, फोर्ट्स, palaces, temples and mosques. The monuments of India reflect the cultural and architectural traditions prevalent at the time of their construction in the country. So इंडिया में बहुत तरह के monuments है. जैसा historical monuments, आप कोई भी अलग स्टेट जब आप जाते हो या अपनी स्टेट के अंदर भी आप अपनी monuments वगैरह देखने जाते हो तो उससे आपको उस टाइम की, मतलब उस टाइम जो जिस टाइम में उनकी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उस टाइम की ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, उसके बारे में उसके ऊपर लिखा हुआ रहता था. या उनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग, स्टाइल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, उससे भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यस द पीपल ऑफ दैट टाइम यूज टू प्रिफर दीज थिंग्स एंड दे यूज टू फॉलो दिस कल्चर एंड दे यूज टू फॉलो दीज ट्रेडिशंस. इससे हमको एक आइडिया आ जाता है. सो दीज स्पेशली रिफ्लेक्ट, मतलब व्हाट दे शो अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री, मेनली शो अबाउट द cultural and architectural traditions of prevalent मतलब उस टाइम पे जो चल रहा था एट द टाइम ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री. जैसे ताजमहल जो कंस्ट्रक्ट किया है, मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो उस टाइम की एम्परर्स किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया है, व्हाट अबाउट द मटेरियल्स दे यूज्ड, व्हाट आर द ट्रेडिशंस दे यूज टू फॉलो, ये सब हमें पता चलता है. जैसा दिल्ली आप विजिट करेंगे तो कुतुब मीनार देख सकते हो, है ना. तो उस टाइम की जो पीपल की क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस है, किस इम्पोर्टेंस के थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट किया है, ये सब हमको इन सब के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलता है. नेक्स्ट, गिवन बिलो और सम ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. अपनी कंट्री में फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या क्या है? ताजमहल इन आगरा, यूपी में आगरा सिटी में जो ताजमहल है, दैट इज़ वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ आवर कंट्री.
खजुराहो टेम्पल्स इन खजुराहो, खजुराहो में जो टेम्पल्स है ये है मध्य प्रदेश में। ये खजुराहो टेम्पल्स उनकी आर्ट मतलब उस टेम्पल्स में जो स्टैट्यूस है, पिलर्स के ऊपर जो स्टैट्यूस वगैरह डिज़ाइन किया है वो आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए बहुत फेमस है। रॉक कट केव्स टेम्पल्स इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु में महाबलीपुरम एक जगह है, उधर रॉक कट केव टेम्पल्स है। केव के अंदर ही पूरा टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किया हुआ, वो आप देख सकते हो। सन टेम्पल इन कोणार्क, उड़ीसा में सन टेम्पल है, वेरी फेमस है, जहाँ पे रथ यात्रा होता है। एंड सांची स्तूपा इन सांची मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो सांची स्तूपा है दिस इज़ ऑल्सो ए फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये मीनाक्षी टेम्पल आप विज़िट करेंगे तो ये एक हिल पे कंस्ट्रक्ट किया है एंड उस टाइम की वो आर्टिस्टिक कल्चर क्या है ये आपको पता चलता है। दिलवारा टेम्पल्स इन माउंट आबू, राजस्थान, राजस्थान में दिलवारा जैन टेम्पल्स जो है वो आप विज़िट करिए। उसमें भी टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब टेम्पल की जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इतना छोटी 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 मतलब एक पत्थर पे इतना अच्छा डिज़ाइनिंग करना विच इज़ हाईली मतलब बहुत मुश्किल है वो करना, बट स्टिल उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तो भी उस टाइम के लोग कैसा ये सब करते थे। दैट्स वाई दीज आर कंसिडर्ड एज आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मतलब अपनी ट्रेडिशंस की, अपनी कल्चर की, अपनी हेरिटेज की एक प्राउड फीलिंग लाने वाली मॉन्यूमेंट्स है ये सब। Now the last topic is paintings. What about the paintings that we can see in our country? Indian paintings have a history of more than 2000 years, मतलब अपनी कंट्री में 2000 years पहले से ही पेंट करना स्टार्ट किए हैं, मतलब that may be any form of painting. The cave paintings at Bhimbetka in मध्य प्रदेश shows the scenes from the life of early humans. मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स जो है उसके अंदर आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें वो केव्स की वॉल्स पे आप अर्ली ह्यूमन की लाइफ स्टाइल की सीनरीज बताए थे, मतलब इससे हम समझ सकते थे कि अच्छा अर्ली ह्यूमन्स ऐसा रहते थे वैसा रहते थे। दिस आर द सोर्स टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, इनके थ्रू अपनी हिस्ट्री में अपनी पास्ट में ऐसा हो चुका है ये आइडिया हम लगा सकते हैं। The Ajanta caves in Maharashtra show various scenes from the life of Gautam Buddha. Ajanta caves जो है महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा caves which are very famous cave temples है, उसमें हमको गौतम बुद्धा की कंप्लीट लाइफस्टाइल की पिक्चर्स आप देख सकते हो। मुगल्स ऑल्सो प्रमोटेड पेंटिंग्स ड्यूरिंग देयर रूल बाय ब्रिंगिंग पेंटर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान। मुग़ल एम्परर्स अपनी कंट्री में बहुत सारे एरियाज़ को रूल किए थे। सो उनकी टाइम पे क्या होता था, ये लोग बाहर से मतलब सेंट्रल एशिया और ईरान से पेंटर्स को लाके पेंटिंग्स करवाते थे। कहाँ पे, उनकी पैलेसेस पे, जहाँ पे उनकी पैलेस हो, फोर्ट हो, और जो भी टेम्पल्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया उस पर वो मुगल्स बाहर से सेंट्रल एशिया एंड ईरान से पेंटर्स को लाके उनसे पेंटिंग करवाते थे। सो इससे हमको पता चलता था कि हाउ इम्पोर्टेंस दे हैव गिवन in the past, how they have given the importance for the art and architecture also. So this art, architecture and music, dance, dresses, language, all these are nothing but the heritage of our country. अपनी country की history, traditions, culture, ये सब क्या prevail होता था, what the people used to do, what the people used to wear, what the people used to eat, what the people used to follow, all these are the traditions and cultures. All this refers to heritage of our country. So we should know about the heritage of our countries. Being an citizen of a country, it is our responsibility to know. So next time कभी भी आप ऐसा अलग स्टेट में अलग प्लेसेस विजिट कर रहे हो या ये मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह विजिट कर रहे हो तो ज़रूर आप इन सब के ऊपर ध्यान रखिए एंड ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स. So children, now go through the video carefully. After that read the chapter and try to understand. So beyond borders में एक important point दिया है. One of the most famous painting in the world is the world famous painting एक है जिसका नाम है the painting of मोनालिसा. मोनालिसा की एक वुमेन की पेंटिंग है मोनालिसा which is done by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, he is a famous painter and one of the famous painting made by him is Mona Lisa. Thank you.